Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So I've been getting a lot of suggestions to make a video on how my preparation was during my struggling days. Now since I have cracked IBPS clerk and SBI PO, so I basically thought of attempting a live mock in front of you people. And since the first exam for this year would be IBPS RRB officer scale, so I thought about the same, why not attempt a live mock in front of you. This is Byju's test series that I had purchased during my preparation days as well. And again, just a suggestion, you can purchase it like for two things. Firstly, the test series is not too costly to purchase, and second, the questions are good. Like ऐसा नहीं है कि the questions are irrelevant to the pattern that is being followed in the current banking exams. It is at par with it, if not par, a bit below it, but definitely would be useful for you people if you are preparing. So let's start it. Let's not waste more time. And again, this is not a promotion video at all. It's just that I used to follow this app in my exam days, so I'm just recommend you this app. So it's up your wish. So let's begin. This is first mock test of Byju. These are some instructions to be followed, but ठीक है, ये तो काफ़ी common instructions होते हैं for हर एक exam के लिए, ठीक है. So we'll be doing it on time basis, and the important thing over here is I'll be attempting it as per my convenience, and later I would be also analyzing the paper. So the video would be a bit longer, so it's your wish. You can pause the video in between. You can solve on your own and then cross verify with my answer, and make sure you watch the whole video so that you get some knowledge about how I used to attempt the paper. So here, let's start. The first section is reasoning, 40 questions, 40 marks. Then you have quants, 40 questions, 40 marks, and total 45 minutes. So after a long time I would be attempting the mock test. So my basic target would be completing this 40 questions completely complete, and maybe in quants anything about 25 plus. So overall I need to attempt with full accuracy anything in the range of 65 to 70. Okay, and as per the cutoff ये काफ़ी कम जाता है pre के लिए at least. So this is, by the way, this is pre exam that I am attempting now in front of you people. So yeah, let's begin. So what's the first question? Okay, so it is talking about 10 people. So it's talking about 10 people who live on a 10-floor building. The lowermost floor is numbered as 1, floor number 2. So quickly हम लोग को जितना भी समझ में आया उस हिसाब से हम लोग लिखते हैं कि there are 10 floors. So here it is. All the information is not necessary in the same order. 3 people live between P and Y. Who lives on the second floor? So Y lives on the second floor. 3 people live between P and Y. Okay. 2 people live between X and P. So X and P possibilities 2 है और हमने already 2 से ही शुरुआत किया था. So why not? 3 people live between X and Q. So नीचे तो possible नहीं है. So 1, 2, 3 X and Q. 1, 2, 3 X and Q. Okay. W lives adjacent to Q. तो Q के adjacent W एक ही possibility है. Again एक ही possibility है. Number of people lives above W is same as the number of people live below R. Above W 1, 2, below R 1, 2, not possible. Above W 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, तो below R भी 6 रहने चाहिए. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो यहाँ पे R आ गया. तो ये possibility तो cancel हो गया. S lives 2 floors above T. तो above T 2 floors S 2 possibilities बनता है. T lives on an odd number floor, ये भी बताया है. तो T यहाँ पे
T यहाँ पे, what is it saying? S lives 2 floors above T. Sorry, so T यहाँ पे आएगा and S lives 2 floors above T. T lives on an odd number floor, that is 1. U does not live on top floor, तो 2 possibilities रह गए थे, तो U ऊपर नहीं रहेगा, तो this is the last alphabet that is left out. How many people live above Q? Q के ऊपर कितने लोग रहते हैं? 1 2 3 4 5. So 5 is my option, that is more than 4. Let's go for the next one. How many people live between you and the one who lives on the second floor? So you तो यहाँ पे है और second floor यहाँ पे, so 1 2 3 4 5. Again 5 is the answer, so option A. Let's go. If the people are arranged according to the names in English alphabetical from bottom to top, so bottom to top से चालू करते हैं, P Q R S T U V W X Y. Okay, so what is it saying? Then how many of them remains unchanged? तो unchanged कितने लोग नहीं रह रहे हैं? That's just one option, that is X and X. So answer is 1. Let's go for the next one. Who among the following lives exactly between Q and T? तो ये नहीं देखना है, हमको ये देखना है. तो Q और T के बीच में कौन रहता है? ये W गया, ये Y गया, बचा क्या? S. So S is my answer. U lives on which amongst the following floor? तो U यहाँ पे है, that is 8th floor, so 8 is the option. Let's go for the next question. If the first and the last letter in each word are interchanged, and then how many meaningful words will be formed? So पहले तो R N U T लिखने, ये just will write it as it is, R N U T A N P A L T S R E W G O R W G O R D N M I. Okay, what is it saying? First and last letter in each words are interchanged. So यहाँ पे T N U R, ये ऐसा कोई word नहीं है मेरे हिसाब से. N P A N, ये भी कोई word नहीं बनता है. E S R T, ये भी कुछ नहीं बन रहा है. W G O R, so R G O W again, I M N D again. There's no such word that is being formed, so none. First and the last letter in each words are interchanged. तो ऐसे तो कोई word मेरे हिसाब से नहीं बन रहा है. Again, once we are cross checking, we'll see what is the right answer for this. Okay, if all the letters in each of the words are arranged alphabetically within the word, then how many words will end with a vowel? Okay, so हर एक word को alphabetically arrange करना है. This is given part, right? So इनको alphabetical arrange करना है. So पहला alphabet कौन सा आता है? N, R S T U, end with vowel. Okay, तो एक बन गया. अगेन A आएगा, फिर A B C L M N O P, तो ये तो नहीं आएगा. सो एक यहाँ पे आ रहा है. फिर लेट्स चेक नेक्स्ट. सो E R S T, ये भी नहीं आएगा. यहाँ पे क्या आएगा? W G O R, सो G पहले आता है. O R W, ये भी नहीं. यहाँ पे D N M I, सो D आएगा. M N नहीं, इसके बाद I भी तो आएगा, सो ये भी नहीं आता है. सो देयर इज जस्ट वन आंसर दैट वी आर गेटिंग, सो A, I mean A is the option. If the second letter of all the words is moved 2 places forward in alphabetical, then how many words will have more than one vowel? तो second को 2 place आगे, M N O P, so R P U T, P M N O P Q R, so N R A L, S R S T U U R E, तो ये एक आंसर बन सकता है. W G H I O R, ये भी एक आंसर बन सकता है. N M N O P M I, ये आंसर नहीं बनेगा. सो हाउ मेनी आंसर डिड वी गेट? 1 2, एनीथिंग एल्स? नो. सो देयर आर जस्ट 2 आंसर दैट वी आर गेटिंग. है ऑप्शन में? यस. सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन. If the words are arranged alphabetically from left to right according to the last letter, then which of the following words will be said? ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है, ये इसको मिस कर देते हैं. Let's go for the next question. What is it saying? Z is the mother-in-law of N. So let's first construct N. And what is it saying? Z is the mother-in-law of N. So N must be married to someone and Z उसकी मम्मी रहेगी. So Z यहाँ पे आ गया. Negative sign indicates it's a female. U is the daughter-in-law of T, who has only one child. Q is the father of R, who is the brother-in-law of N. N के brother-in-law है R. Okay, and Q is the father of R, so Q must be married to Z. Okay,
And what is it saying? U is the daughter-in-law of T, who has only one child. Okay, fine. Z has only 2 children, 1 son and 1 daughter. So son तो हो गया, so यहाँ पे daughter आ गए, तो ये but obvious son रहेगा. And L and M are grandsons of T. So L and M अगर grandsons of T है तो basically यहाँ पे L और M आना चाहिए, and they are grandson of T. तो T में भी यहाँ पे रहेगा, ओके, या फिर T N के कुछ रिलेशन में रहेगा. लेट्स चेक वंस अगेन नाउ. Z इज़ द मदर इन लॉ ऑफ N, ठीक है, वो तो हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया. व्हाट इज इट सेइंग? U इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ T. सो U यहाँ पे आएगा. सो U इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ T. हाउ इज़ T रिलेटेड टू M? सो एक्चुअली हमारा क्वेश्चन बन गया. लेट्स गो फॉर द आंसर्स. हाउ इज़ T रिलेटेड टू M? T का कुछ रिलेशन ही नहीं पता है, तो इट कैन बी इधर ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर एज पर द पार्ट. ओके, टी और एम का कुछ रिलेशन डायरेक्टली पता नहीं है, लाइक ये मेल है फीमेल है पता नहीं है, सो इट कैन बी इधर ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर. हाउ इज़ एन रिलेटेड टू क्यू? एन और क्यू में रिलेशन क्या है? एन इज़ द सन इन लॉ, सो सन इन लॉ इज़ द ऑप्शन. द पोजिशन ऑफ हाउ मेनी डिजिट्स इन द नंबर 5, 9, 1, 6, 4, 8, 2, 3 विल रिमेन अनचेंज आफ्टर द डिजिट्स आर रीअरेंज्ड in the descending order. Let's write the numbers 5, 9, 1, 6, 4, 8, 2, 3. Okay, so let's write in the descending order 9, 8, 6, 5, 4, 2, 4, 3, 2, 1. And what is it saying? How many digits are remain unchanged? तो ये तो ठीक है, ये okay, this is 4, 4, 2, 2. So 2 digits remain unchanged, so 2 is my answer. What is it saying next? There is a puzzle now. There are 8 people and 8 different days, but not necessarily in the same order. D attends the occasion just before C. So first let's just write it. D attends the occasion just before C. C के पहले just D आता है. And 2 people attend the occasion between D and A. So 2 people D and A, 2 possibility बनेंगे. ऊपर भी तो आ सकता है, इसलिए हमने 2 बना दिया. What is it saying? 3 people attend the occasion between A and G. H attends the occasion just before G. अगर 3 persons between A and G करने जाएंगे, ओके, तो ये more than 8 वाला बनेगा, तो 3 person A and G इधर तो बनेगा ही नहीं, so this possibility gets cancelled. 3 persons attend between A and G, 1, 2, 3, so A and G यहाँ पे हो सकता है, बट उन्होंने लिखा है H attends the occasion just before G, तो ओके फाइन, ये भी एक possibility बनेगा. And what was next? D, C, A. 3 people, 1, 2, 3, G और H. ये भी एक पॉसिबिलिटी बन सकता है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो ये लास्ट है और ये फर्स्ट है, ऐसे हम पकड़ के चलेंगे. ओके, एंड H अटेंड्स द ओकेजन जस्ट बिफोर C, वो लिखा. B अटेंड्स द ओकेजन जस्ट आफ्टर E बट नॉट एट लास्ट. ओके, सो यहाँ पे आ सकता है B अटेंड्स द ओकेजन जस्ट बिफोर E बट नॉट एट लास्ट. ये हो गया एक. एंड B अटेंड्स द ओकेजन जस्ट बिफोर E नॉट एट लास्ट, तो ये फर्स्ट में डल गया. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये हो गया, ये हो गया. व्हाट इज इट सेइंग लास्ट में? ओनली 1 अटेंड्स द ओकेजन बिटवीन E एंड F. तो E एंड F में एक ही पॉसिबिलिटी बनना चाहिए, जो कि दोनों में नहीं बन रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ हो गया. ओके, लेट्स चेक फर्दर, वापस एक बार फटाफट. D attends the occasion just before C. D attends the occasion just before C. D just before C. Okay. फिर बोला है कि 2 people attend the occasion between D and A. So 2 people attend D and A. 2 people attend D and A. इधर भी तो D and A हो सकता था. Okay. So यहाँ पे क्या था? A, D, C. What was it saying? 3 people attend the occasion between A and G. 1, 2, 3. A and G. And H attends the occasion just before G. H 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ये तो पॉसिबल ही नहीं है. ओके, सो 2 यहाँ पे हो गया. फिर 3 people attend the occasion between A and G. So 1, 2, 3 A and G. 1, 2, 3 A and G. H ये भी परफेक्ट था. B attends the occasion just before E but not at last. ओके, तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ऐसा बन सकता है कि यहाँ पे मैंने B attends the occasion just before E but not at last. Okay, ठीक है.
आई गेस ये मेरे से नहीं हो रहा है फ़िलहाल, तो इसको हम मिस करके आगे बढ़ते हैं. इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज शॉर्ट स्पोर्ट पेपर विद प्लग इज कोडेड एट दिस क्यूब दिस व्हाट इज़ द कोड फॉर स्टोन. तो स्टोन यहाँ पे दिख रहा है, स्टोन और कहीं पे दिख रहा है क्या? नहीं. सो मिरर पहले मिल जाएगा मुझे. सो लेट्स गो फॉर मिरर पार्ट. सो मिरर के लिए आंसर क्या बन रहा है पहले वो चेक कर लेते हैं. इज इट JW XUFT FA? सो JW इज़ द आंसर फॉर मिरर. ओके. एंड देन यू हैव नेल ओवर हियर एंड हियर. सो नेल के लिए कॉमन क्या दिख रहा है यहाँ पे? FT. सो नेल का आंसर FT आएगा. ठीक है. एंड लेटर और क्या निकल सकता है? स्टोन हो गया, मिरर फ्लोर वॉल. मिरर के लिए कुछ बन सकता है क्या? ऊपर और नीचे वो तो हो गया, सॉरी. फ्लोर एंड स्टोन एंड फ्लोर इज टू थिंग्स. एंड वॉल के लिए क्या मिल सकता है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वॉल है, यहाँ पे भी वॉल है, तो AX वॉल के लिए निकलेगा. तो हमारे पास AX और JW का आंसर मिल गया है. सो AX और JW जाने के बाद FA और DN बचता है जो यहाँ पे दिख रहा है. इधर इट इज़ FA और DN. व्हाट इज़ द कोड फॉर नेल एंड वॉल? तो नेल और वॉल का तो आंसर हमने निकाल दिया था, FT एंड AX. तो FT AX यहाँ पे दिख रहा है. सो लेट्स गो फॉर इट. व्हाट इज़ द कोड फॉर RE एंड JW? ओके. व्हाट इज़ द कोड फॉर RE एंड JW के लिए तो हमको मिरर मिल गया था. तो लेट्स चेक सिर्फ मिरर एक. अच्छा, और नेल के लिए FT है, तो एक ही आंसर पॉसिबल है, दैट इज़ क्यूब मिरर. ओके. सो देखा हमने क्यूब के लिए आंसर निकाला ही नहीं, वी जस्ट वेंट फॉर द राइट ऑप्शन. ठीक है ना. नाउ व्हाट इज इट सेइंग? व्हाट इज द कोड फॉर पेपर स्पोर्ट फ्लोर स्टोन? ओह दैट्स टू मनी. सो पेपर के लिए कहाँ पे आंसर मिल सकता है मुझे? बट उसके लिए मुझे स्पोर्ट के लिए चाहिए. स्पोर्ट एंड पेपर यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, और सिर्फ यहाँ पे ही दिख रहा है. सो स्पोर्ट एंड पेपर के लिए आंसर कैन बी RX एंड XU. तो इधर इट वुड बी स्पोर्ट एंड क्या था वो? पेपर, जिसके लिए आंसर क्या बन सकता है? RX XU. ठीक है. एंड फ्लोर एंड स्टोन, फ्लोर के लिए कुछ बन सकता है क्या? एंड स्टोन के लिए, तो फ्लोर एंड स्टोन के लिए हमको पता नहीं था. एंड इफ़ यू रिमेंबर, फ्लोर और स्टोन के लिए देखो हमने यहाँ पे लिखा था, इट इज़ लाइक इधर FA और DN. तो हमारे पास FA मिल गया, DN मिल गया, और अब भी क्या मिला था? RX एंड XU. सो RX XU FA DN, ये आंसर बन सकता है. व्हाट इज़ इट सेइंग? अच्छा, ये डायरेक्शन पजल आ गया. ओके, लेट्स गो फॉर इट. व्हाट इज़ इट सेइंग? पॉइंट I इज़ 9 मीटर वेस्ट ऑफ J. तो J के वेस्ट में, दैट इज़ ओवर हियर, I 9 मीटर के डिस्टेंस पे. C इज़ 25 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ E. ठीक है, ये तो कर नहीं सकते हैं अभी फ़िलहाल. F इज़ 18. I और J के रिलेटेड और कोई पॉइंट है क्या पूरे इसमें? ये देखो, I इज़ 5 मीटर नॉर्थ ऑफ H. सो H यहाँ पे आ जाएगा, 5 मीटर नॉर्थ ऑफ H. H विच इज़ 7 मीटर ईस्ट ऑफ G. तो G यहाँ पे आएगा 7 मीटर ईस्ट. अब G के रिलेटेड और कुछ है क्या? व्हाट इज़ इट सेइंग? C इज़ 15 मीटर नॉर्थ ऑफ G. तो 15 मीटर नॉर्थ ऑफ G C है. ओके, सो यहाँ पे 15. अब C के रिलेटेड D इज़ इन द ईस्ट ऑफ C, लेकिन पता नहीं कितना, तो D यहाँ पे कहीं पे तो आ सकता है. ओके, हमने सिर्फ बना के रखा है. लेकिन D के लिए देखो यहाँ पे क्या हो रहा था? F इज़ 18 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट D. वो भी D से पता नहीं कर सकते हम लोग. Z इज़ 45 मीटर साउथ ऑफ B. ये भी पता नहीं कर सकते. तो यहाँ पे क्या था? C इज़ 25 मीटर ऑफ द साउथ वेस्ट ऑफ E. ओके. एंड I इज़ नॉर्थ ऑफ H. I इज़ 5 मीटर नॉर्थ ऑफ H. E इज़ 25 मीटर नॉर्थ ऑफ F. ओके, बट F किधर है फिर? C इज़ 15 मीटर नॉर्थ ऑफ G. वो तो लिख दिया. D इज़ ईस्ट ऑफ C. Z इज़ 45 मीटर साउथ ऑफ B. ओके, पहले ये यहाँ पे कुछ जो नहीं पता है वो सब कंस्ट्रक्ट करके रखते हैं. Z इज़ यहाँ पे 45 मीटर्स पे. ओके. एंड I इज़ 9 मीटर वेस्ट ऑफ J. वो तो हो गया. C इज़ 25 साउथ वेस्ट ऑफ E. साउथ वेस्ट ऑफ E. सो दिस इज़ साउथ एंड दिस इज़ वेस्ट. सो यहाँ पे कहीं पे तो E रहना चाहिए. ठीक है. एंड व्हाट इज़ इट सेइंग? E कितने डिस्टेंस पे है? 25 मीटर.
तो दिस इज़ 25, ठीक है. F इज़ 18 वेस्ट ऑफ D, 18 वेस्ट ऑफ D. एंड वापस यहाँ पे भी कहीं पे तो F वाला पॉइंट था. हाँ, E इज़ 25 मीटर नॉर्थ ऑफ F. F 24. और यहाँ पे देखो बेसिकली दिस इज़ ना, इट इज़ लाइक अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो इसका स्क्वायर 576, इसका 624, 625, 576, 25, तो ये 7 रहना चाहिए. दिस शुड बी 7. एंड देखो ये 7 7 आ गया, तो ये तीनों एक ही लाइन में आ जाएंगे. परफेक्ट. चलो सारे आंसर्स मिल गए. Z इज़ इन विच डायरेक्शन ऑफ H. Z किधर लिखा था हमने, H तो यहाँ पे है. और Z के लिए क्या था कंडीशन, Z इज़ 45 मीटर साउथ ऑफ B. एंड बट B किधर था, B इज़ 30 मीटर ईस्ट ऑफ E. ईस्ट ऑफ E 30, तो ये 9 है. B is 30 meter east of C and Z is 45 meters south of B. So this is 24 and ये 5 है तो ये 10 हो जाएगा. This is 34, 39 and it has to be 45 south of B. So Z यहाँ पे आएगा. So what is it saying? Z is in which direction of H? तो दिस इज़ साउथ एंड दिस इज़ ईस्ट. सो साउथ ईस्ट शुड बी द आंसर. येस, हमारे पास ऑप्शन है. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन F एंड I. सो F और I के बीच में कितना है, 10. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन H एंड J. तो यहाँ पे हमको एक 90 डिग्री हाइपोटेन्यूज. 9 स्क्वायर 81, 25 gives you 106. So root of 106 is your answer.
12 4 48, 48 कौन से टेबल में आता है? 8 और 6, सो -8 -6, ओके, एंड 9 2 18, अगेन 9 2, सो -9 -2, और उसको डिवाइडेड बाय 9 करेंगे, डिवाइडेड बाय 9, सो दिस इज व्हाट डिवाइडेड बाय 9, दिस इज डिवाइडेड बाय 9, दिस इज डिवाइडेड बाय 12, 12 divided by 12, 12. Now this is nothing but -2/3, this is nothing but -1/2, this is -1, this is -2/9. अब इन दोनों में बड़ा तो यही है, इन दोनों में बड़ा भी यही है, इन दोनों में बड़ा ये है, ओके, दैट इज़ 0.2 समथिंग. तो दिस इज़ नाइदर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश ही नहीं होता है यहाँ पे. x² 324 है, तो x का वैल्यू क्या आएगा? 18 -18. y + 18 द होल स्क्वायर, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही आंसर आएगा, y = -18, तो ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू आंसर आएगा. दोनों साइन अगर नेगेटिव रहते हैं, ओके, तो देखने का नहीं, आजू बाजू सीधा लास्ट ऑप्शन पे क्लिक करने का. अब यहाँ पे चेक करते हैं. 9 8 72, पहले का आंसर तो 9,8 ही आएगा, ठीक है. एंड दूसरा 48 है, एंड 48 कौन से टेबल में जाता है? 16 3 सा, क्योंकि 19 चाहिए, सो यहाँ पे 16 और 3 भी आएगा, लेकिन उसको डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये 8 हो जाएगा, दिस इज़ 1.5. 9 इज़ ग्रेटर इक्वल ग्रेटर ग्रेटर, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू y शुड बी द आंसर. ऑल राइट, 6 मिनट है, और 6 मिनट में और कुछ छोटे मोटे सम कर सकते हैं. तो छोटे मोटे में चक्कर में सेटिस्फाइंग नंबर अटेम्प्ट किया है क्या? नहीं, 45 से कुछ नहीं होने वाला. ये छोटे नंबर्स दिख रहे हैं, इसका कुछ कर सकते हैं क्या? 8 × 1 - 1, 7 × 2 - 2, 12 × 3 - 3, 33 × 4 - 4, 33 × 4, 4 3 12, carry 1, 132, 132 - 4, 121, तो 121 is my answer for this. इन दोनों में फ़र्क कितने का है? 24, इसमें 45 इंटू 2 + 5 इंटू 2 करेंगे, नहीं छोड़ो. 117 और 126, 3 6 9, और इन दोनों में कितने का फ़र्क है? 16 18, इन दोनों में 27, इन दोनों में 36 रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 37 है, तो 98 इज़ द रॉन्ग आंसर. एटलीस्ट 50 भी हो गए ना, आई वुड बी सेटिस्फाइड. 5 मिनट है 50 के लिए, नहीं. हाउ अबाउट गोइंग बैक टू लॉजिकल. एरिया ऑफ अ rhombus is 96 centimeters square, and the ratio of its diagonal is 3:4. If the length of the rectangle is equal to the largest diagonal of the rhombus and area is 144, find the breadth, okay, and the ratio of the diagonal is. तो एरिया ऑफ अ rhombus का फॉर्मूला हमें याद रहना चाहिए. So what is area of a rhombus का फॉर्मूला? हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ द डायगोनल, सो 3 × 4 12, सो 12x², 12 8 96, सो x² इक्वल्स टू 8 आता है, 4 3 12, 12 8 96. ये भी हम कर नहीं पाएंगे, अभी फ़िलहाल स्ट्राइक नहीं कर पा रहे. तो ये अर्थमेटिक के क्वेश्चंस के लिए हम लोग एक अलग सेक्शन रख लेंगे, सेशन, सॉरी. कोई और क्वेश्चन है जो कर सकते हैं? सबमिट टेस्ट करने पे हमारा सिर्फ 47 बन पा रहा है, टारगेट 65 to 70 का था. एक काम कर सकते हैं क्या, फिर से रीजनिंग पे भागते हैं. और इसमें हमने क्या अटेम्प्ट नहीं किया था? द लास्ट पार्ट, राइट? क्या था ये? आर सीटेड अराउंड अ सर्कुलर टेबल. ओके, एक काम करो, फिर से ये सर्कुलर टेबल वाला क्वेश्चन पे जाते हैं. वाई टू वेस्ट टाइम? 3 मिनट है हमारे पास. सर्कल बनाओ. 8 people, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8.
ओके तो यू से शुरुआत किया था तो आंसर बन नहीं रहा था, तो और कुछ है कि आर सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई एंड फेसेस द सेम डायरेक्शन एज ई फेसेस. सो आर एंड ई से शुरू करके देखते हैं. ई बाहर, ई अंदर. आर सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट, 1 2 3 आर, और सेम डायरेक्शन तो अंदर, 1 2 3 आर, सेम डायरेक्शन मतलब बाहर. ओके ये पेन को भी अभी ख़राब होना था. W sits immediate left of R and faces opposite direction as H faces. W sits immediate left of R, तो W यहाँ पे आएगा and W sits immediate left of R, W यहाँ पे आएगा. फिर W के रिलेटेड कुछ है क्या? और W does not face outside बोला है, so W faces inside, so W faces inside. What else? Two people sit between E sits second to the right of H. E जो है सेकेंड टू द राइट ऑफ H, तो H यहाँ पे भी आ सकता है, H यहाँ पे भी आ सकता है. लेकिन टू पीपल सिट बिटवीन U एंड H बोला है, तो H यहाँ पे आ गया, तो टू पीपल सिट बिटवीन U एंड H नॉट पॉसिबल. H यहाँ पे टू पीपल. एंड फेसेस अपोजिट टू H. E सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ H एंड फेसेस अपोजिट टू H. H second to the right of H opposite to H. H second to the right of H opposite, and then two people sit between H and U, तो U यहाँ पे आएगा. two people sit between H and U, तो U यहाँ पे आएगा. इसको पार्टीशन कर दिया. और क्या बोला था? T sits immediate right of U, तो T तो यहाँ पे ही आएगा कंपल्सरी. immediate right of U, तो ये ऐसे, ये ऐसे. ओके T faces inside, so T faces inside, T faces inside. ओके बचे कौन से अल्फ़ाबेट है? Q faces same direction as E faces, so एक Q और Y. Y does not sit near to E, तो Y यहाँ पे नहीं, यहाँ पे Q यहाँ पे, Y यहाँ पे नहीं, यहाँ पे Q यहाँ पे. And what is it saying? Q faces same direction as E faces. तो बोला क्या था? सम आर फेसिंग इनसाइड, सम आर फेस. T sits immediate right of U, two people sit between U and H हो गया. E sits second to the right of H and faces opposite, ये भी हो गया. R sits third to the left of E and faces same direction as E. W sits immediate left of R and faces opposite direction as H faces. W faces opposite of H, W faces opposite of H, तो ये तो गलत हो गया. तो this is the right answer. चलो, how many people sit between U and Y when counted left of U? U और ये left, U and Y, 1 2 3, so answer is 3. Who among the following sits second to the right of T? 1 2 E. Who among the following sits third to the right of W? 1 2 3 U. If H is related to Y and R is related to E, H is related to Y and R is related to E. Okay, same directions. And U is related to बाहर, बाहर कौन जा रहा है? H. Who among the following sits second to the left of Y? R. Okay, so time up. Let's see how much we are scoring. Oh, so we attempted 52, we scored 51 right. Okay, the cut off 62.75 था. मे बी अगर हम जो हमारा स्टार्टिंग में टारगेट रखा था 65 to 70 का, वो अगर अचीव कर लेते थे तो वी कुड हैव अचीव द कट ऑफ एज वेल. ठीक है, कोई बात नहीं. एंड अबाउट दैट अगेन आई वॉज एक्सप्लेनिंग एंड सॉल्विंग, सो मे बी आई कुड नॉट मेक इट इन दैट पर्टिकुलर टाइम लिमिट. तो इतना तो श्योर है कि अगर आप खुद से सॉल्व करने जाओगे तो डेफिनेटली आपका वो क्लियर हो जाएगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ यू हैव सीन व्हाइल सॉल्विंग, आई मेड श्योर कि मेरे बेसिक्स बहुत ही अच्छे खासे थे. अप्रॉक्स में आई यूज टू नॉट फंबल. तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको पहले से बहुत ही अच्छे प्रिपेयर रहने चाहिए. दैट इज स्क्वायर्स, क्यूब्स, टेबल्स लाइक 1 to 20 25 अच्छे खासे बायाट रहने चाहिए. एंड अगेन इन रीजनिंग इफ़ यू सी कि मैं कभी भी एक पॉसिबिलिटी से शुरू ही नहीं करता था, मैं हमेशा 2 पॉसिबिलिटी से शुरू करता था.
तो गॉन आर द डेज जहाँ पे आपका एक पॉसिबिलिटी में आपको आंसर मिलेगा, एंड मेक श्योर कि आप 2 पॉसिबिलिटी से ही शुरू करो रैदर देन वेस्टिंग टाइम लेटर ऑन. ओके, एंड मेंटेन स्पीड, मेंटेन एक्यूरेसी. ओके, दिस आई फील इज़ एक्चुअली अ गुड स्कोर. अगर मैं एक्सप्लेन नहीं करता था एंड अगेन आई वुड हैव जस्ट फोकस्ड ऑन सॉल्विंग, तो मे बी आई कुड हैव अचीव द टारगेट दैट आई हैड सेट इन द बिगिनिंग. लेकिन कोई बात नहीं, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम राइटिंग मॉक ऑफ प्री. सो हमारा रीजनिंग में ही एक स्किप भी हो गया और एक गलत हो गया, मे बी वो लास्ट में जब हम कर रहे थे. एंड क्वांट्स में हमने 13 करेक्ट किए, 13 ही अटेम्प्ट किए थे. सो एवरीथिंग इज़ परफेक्ट ओवर देयर. कोई बात नहीं, एवरेज स्टूडेंट से तो काफ़ी अच्छा स्कोर है अपना 10+. ओके, सो या दैट्स द फर्स्ट मॉक दैट वी हैव सॉल्व्ड. सो आई विल मेक श्योर कि हर सैटरडे वी सॉल्व अ मॉक फॉर द फोर्थ कमिंग एग्ज़ाम. तो एक कम से कम 7-8 मॉक आपके लिए रेडी रहेंगे, एंड आई विल बी सॉल्विंग बायजू का ही मॉक. एंड यू कैन ऑल्सो सॉल्व, you can purchase that app, you can download that app, purchase the test series if possible. Again, not a promotion video at all. Okay, it's like personally I have experimented, so I have tasted success, so I'm recommending the same to you. Okay, so till then let's meet for the next time, and be prepared with your basics so that you could raise queries at any time. Thank you, bye bye.